ہر نظر امریکہ کی جانب ہے، امریکہ کی جانب مرکوز کی ہوئی ہے، اور بنیادی طور پر انتخابات کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ کون برسر اقتدار آ سکتا ہے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ آئیں گے یا کہ کیملا ہیرس آئیں گی۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں انتہائی سخت مقابلہ ہے۔ 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں، ان 7 سوئنگ سٹیٹس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون برتری حاصل کرتا ہے۔ ابھی تک اچھا انور ٹھیک ہے، وسکانسن اور مشیگن شامل ہیں، لیکن پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ ریلیز نکالی، دوبارہ اپنے عوام کو اپنے ساتھ ملایا اور اس وقت معمولی سی برتری میں ہے۔ یہ 3 سٹیٹس جو ہیں اہم ہیں 7 سوئنگ سٹیٹس میں سے، اور یہ طے کریں گی کہ کون امریکی صدر بنتا ہے۔ بنیادی طور پر امریکی الیکٹورل کالج کے ذریعے امریکی صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ الیکٹورل کالج کا پروسیس کافی ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ پرائمریز کے انتخابات ہوتے ہیں جو کہ امریکی کانگریس کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاکس کے انتخابات امریکی سینٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو نمائندگان منتخب ہوتے ہیں یہ اپنی اپنی جماعت میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں اپنے صدارتی امیدواروں کا فیصلہ کرتے ہیں، اور 2 صدارتی امیدوار اس وقت آمنے سامنے ہیں جن میں کہ کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور بنیادی طور پر مقابلہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ اگست میں جو بائیڈن پہلے صدارتی امیدوار تھے، تاہم انہوں نے الیکشن سے دستبرداری کا انتخاب کیا، جس کے بعد کیملا ہیرس کو متفقہ امیدوار بنایا گیا، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی امریکی جو سینیٹر یا امریکی کانگریس مین اس عہدے کے لیے امیدوار نہیں تھا۔ بلا مقابلہ وہ امیدوار منتخب ہوئی، اور اس وقت ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ بنیادی طور پر تقریباً 538 الیکٹورل ووٹس ہیں، جن میں سے کہ 270 ووٹس کی ضرورت ہے امریکہ کا صدر بننے کے لیے، اور جو بھی آج کے دن فتح یاب ہوگا جنوری 2025 میں اس کی باقاعدہ طور پر حکومت برسر اقتدار آ جائے گی امریکہ میں۔ پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کافی حمایت ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ پاکستان میں کیملا ہیرس کے حوالے سے حمایت تھوڑی کم ہے۔ اس کی وجہ ان کا بھارتی بیک گراؤنڈ ہے، ان کی مدر جو ہے ان کی والدہ، چونکہ ان کا تعلق بھارت سے تھا، لہٰذا پاکستان میں ایک ایلیمنٹ آف فیئر ہے تھوڑا سا پاکستانی سیاستدانوں میں کہ اگر وہ برسر اقتدار آتی ہے تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ انہوں نے مختلف جنگوں کو ختم کیا، امریکی فوجوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا اپنی پہلی مدت اقتدار میں، لہٰذا پاکستان میں کافی ہمدردی ان کے حوالے سے ہے کہ اگر وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو امریکہ کا جو عالمی سطح پہ اثر و رسوخ ہے عسکری حوالے سے اس میں کمی آ سکتی ہے، امریکی فوجوں کو واپس بلایا جا سکتا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں امریکی انتخابات کی مہم کی تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نسبتاً تھوڑا پیچھے ہیں کیملا ہیرس سے۔ اس کی بنیادی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تارکین وطن کے حوالے سے سخت پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو مختلف قومیتیں ہیں امریکہ میں موجود، اس میں لاطینی ہے، لیٹینوز ہے، اسپینش ہیں، اس میں سیاہ فام امریکی ہیں، اس کے علاوہ عرب امریکنز ہیں، ان کے حوالے سے بعض مواقع پہ ایسے انہوں نے بیانات دیے جن کی وجہ سے وہاں پہ کافی ریزنٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ اس کے علاوہ کیملا ہیرس کو حمایت حاصل ہے، خواتین کی بڑی تعداد میں امریکی خواتین کیملا ہیرس کو سپورٹ کر رہی ہیں، مردوں کی بھی ایک بڑی تعداد کیملا ہیرس کے ساتھ ہے۔ اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کون ظاہر ہے، آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے بات مزید کرتا رہوں گا۔ ہمیں سین تجزیہ کار جناب مشرف ظہور صاحب نے جوائن کیا، میں چاہوں گا کہ انہیں شامل گفتگو کریں۔ مشرف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر ویسے تو دونوں ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، پاکستان کے لیے ان کی پالیسی کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، پاکستان کی توجہ اس طرف ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن آپ کے خیال میں جو ابھی تک آپ نے کیمپین دیکھی ہے ایک نان سیریسنس نظر آتی ہے ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے خطابات ہیں ان کے اندر، اور سیریسنس ہے کسی حد تک کیملا ہیرس کے خطابات میں، ان کی پالیسی سٹیٹمنٹس میں۔ آپ کے خیال میں زیادہ شرف قبولیت ووٹرز جو ہیں امریکہ کے ابھی تک وہ کس کو دے رہے ہیں، ٹرمپ کو یا کیملا ہیرس کو؟ دیکھیں بہت سخت مقابلہ ہے، یہ پہلا الیکشن ہے امریکی تاریخ کا جب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سب بہت سخت قسم کا مقابلہ ہے دونوں امیدواروں میں، کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں۔ لیکن آپ نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کی، تو جب ہم پاکستان امریکہ کے تعلقات کو اس نظر سے ہم اس پورے الیکشن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، وہ کن عوامل پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیادہ تر سیکیورٹی
सलामती से रिलेटेड जो या डिफेंस से रिलेटेड जो मामलात हैं उन पे ज़्यादातर रही। लेकिन इसके अलावा आप देखें अफगानिस्तान में उसकी मिसाल है कि अफगानिस्तान में जो भी उनका वो अमरीकी फौजियों का वहाँ से इनखला हो या वहाँ पे आना हो, उससे लेकर और बाद में जो उसकी जो फॉल आउट था, ये सारे वो अवामिल थे जिसके गिर्द पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात रहे। हिस्टोरिकली भी हम अगर सीटो सेंटो से भी शुरू करें 60 से 50 से, तो पाकिस्तान के ज़्यादातर ताल्लुकात इन्हीं अवामिल पे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो अभी जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, यानी कि हमेशा ही मोस्टली हमारा ये कोशिश होती है कि बैलेंस करके हम इन ताल्लुकात को जो है लेके चलें, जिसमें सिर्फ अमेरिका ही दुनिया में नहीं है, बाकी भी सुपर पावर्स हैं जिनके साथ हमने मेजर पावर्स हैं, जिसमें हमारे साथ चाइना के ताल्लुकात है, रूस के ताल्लुकात है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। तो हमारे मुआशी कुछ चीजें हैं वो भी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, जिसमें IMF सबसे अहम तरीन चीज है। तो अगर हम कैंडिडेट्स को अगर हम देखेंगे स्पेसिफिकली, तो ये एक बड़ी अहम बात है कि अमेरिका में जो पॉलिसी मेकिंग है वो इदारा जाती है। बिल्कुल सही। इदारा जाती का मतलब ये है कि उसकी तब्दीली जो है पॉलिसी की वो जो भी आ जाए वहाँ पे जो तब्दीली है वो उस वक्त उस पे पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जिस तरह के भी हमारे उनसे ताल्लुकात हैं, उनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें 2-3 चीजें अहम हैं। अगर हम ट्रम्प के बारे में बात करें, नॉन सीरियसनेस या सीरियसनेस की बात करें, तो इसमें देखें अगर तो हम मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो उसमें फिर ये होता है कि ट्रम्प जो है ही इज द फर्स्ट US प्रेसिडेंट जिसने 2017 में यरूशलेम में जाके दीवारे गिरिया पे पहला प्रेसिडेंट US प्रेसिडेंट है जिसने रिकॉग्नाइज किया यरूशलेम को एज इजरायली जो उनका कैपिटल है। और ये बड़ी अहम बात है कि जो ट्रम्प का झुकाव है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो ज्यादातर जो प्रो इजराइल है। लेकिन कमला हैरिस की अभी हम स्टेटमेंट हम देख रहे थे पिछले दिनों, या लास्ट रैली में जो उसने कही है कि ये जो वक्त आ गया है कि अब गजा और उस पे जो है सीज फायर हो और एग्रीमेंट पे पहुंचे। तो ये सारी बातें अगर हम देखें इस तनाजुर में हम देख सकते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अदारा जाती उनके वहाँ पे इदारों का जो है वो एक पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत भी है अमेरिकन, क्योंकि हमारा बिल्कुल ठीक। मुकाबला होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान, और 5 नवंबर 2024 ये वो इलेक्शन की तारीख है जब अमरीकी अवाम ने इंतखाब करना है अपने नए सदर का। वाशिंगटन में पोलिंग से कबल क्या माहौल है, हमने रब्ता किया है नुमाइंदा खुसूसी फजल खालिक से, जो कि रियासत मेरीलैंड में बात करेंगे, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ नुमाइंदगान से भी हम वक्तन फवक्तन जो है वो हम रब्ता कर रहे हैं, माहौल भी जान रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम का जो झुकाव है वो किस नुमाइंदे की तरफ ज़्यादा है। तो फजल खालिक हैं जो कि रियासत मेरीलैंड में पहली बार पाकिस्तानी नजाद चीफ जज मुंतखब होने वाली सारा भट्ट के साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो फजल खालिक आगा कीजिए। चीफ जज जो है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा भट्ट है। मैं यहाँ पे मेरीलैंड में काफ़ी सालों से एज ए चीफ जज काम कर रही हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो पोलिंग प्लेस होती है वो मेरे सुपरविजन में होता है सारा पूरी लोकेशन, जिसमें अंदर मैंने जो अर्ली वोटिंग अभी की है पिछले पूरे वीक में, उसमें तकरीबन हम 22 मेरे अंडर जो जज थे वो काम कर रहे थे, जिसमें हमारे 6 जो है वो चेकिंग जजेस थे, फिर बूथ लोकेशन में 4 हमारी स्कैनिंग थी और 6 हमारी जो BMDs हैं बैलेट मार्किंग डिवाइसेस थी वो थी, और हम तो चीफ जजेस थे जो कि हमारे अंडर जो पूरी पोलिंग प्लेस थी वो आती है। डेमोक्रेटिक पार्टी है वो वार्ड्स की तरफ ज्यादा जाती है, तो कम से कम जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका रुझान बिजनेस की तरफ है, लोगों को बिजनेस की तरफ लेकर आने का। बैलेट मार्किंग डिवाइस, तो उसमें हम जो पेपर जो उसका बैलेट डालते हैं सिर्फ जिसको टच किया जाता है वो ही काउंट होता है। ये बिल्कुल टोटली फेक न्यूज है, मतलब इस तरह कभी हो नहीं सकता। मेरा मैसेज लोगों के लिए सिर्फ यही है कि आप लोग बाहर जरूर आए, वोट डालें, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि आप वोट नहीं डालते और फिर राइट पर्सन चूज हो जाए, ये गलत बात है। तो आप लोग जब तक खुद चूज नहीं करेंगे राइट पर्सन को, तो वो कभी भी सियासत में नहीं आ सकेंगे। अक़वाम आलम के जो फैसले हैं
और उनकी नजरें जो है इस इलेक्शन पर जमी हुई हैं कि कौन सदर आता है। अगर कैमला हैरिस आती हैं तो वो क्या डिसीजन लेगी उसके बाद, और महंगाई का क्या ग्राफ होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो वो बयानियां दे रहे हैं क्या उनके बयानियां दुरुस्त होंगे। अमेरिकियों को भी पता लगे कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो माहौल कैसा होता है, उन्हें भी ज़रा इसकी आदत हो जानी चाहिए। बहरहाल साथ ही रहिएगा तारिक। अनवर अब्बास हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं वफाक दारुल-हुकूमत से। अनवर, ज़ाहिर है बाकी मुल्कों की तरह इस्लामाबाद की नज़रें भी वाशिंगटन पर लगी हुई हैं इलेक्शन के नताइज से। ज़ाहिर है हमें भी फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान को भी फ़र्क पड़ता है। इस्लामाबाद की क्या फ़ज़ा है, क्या वहाँ पर इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं US इलेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त अमरीकी इंतखाबात के हवाले से हर नज़र अमरीका की जानिब है, अमरीका की जानिब मरकूज़ की हुई है। और बुनियादी तौर पर इंतखाबात के हवाले से देखा जा रहा है कि कौन बरसर इक़्तिदार आ सकता है, डोनाल्ड जे ट्रंप आएंगे या कि कैमला हैरिस आएंगी। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में इंतहाई सख्त मुकाबला है। 7 स्विंग स्टेट्स हैं, इन 7 स्विंग स्टेट्स में ये देखा जाएगा कि कौन बढ़तरी हासिल करता है। अभी तक अच्छा अनवर, ठीक है, विस्कॉन्सिन और मिशिगन शामिल हैं, लेकिन पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा रैलीज निकाली, दोबारा अपने अवाम को अपने साथ मिलाया और इस वक्त मामूली सी बढ़तरी में है। ये 3 स्टेट्स जो हैं अहम हैं 7 स्विंग स्टेट्स में से, और ये तय करेंगी कि कौन अमरीकी सदर बनता है। बुनियादी तौर पर अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए अमरीकी सदर का इंतखाब किया जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पर प्राइमरीज़ के इंतखाबात होते हैं जो कि अमरीकी कांग्रेस के लिए होते हैं। इसके अलावा कॉक्स के इंतखाबात अमरीकी सेनेट के लिए होते हैं। ये जो नुमाइंदगान मुंतखब होते हैं ये अपनी अपनी जमात में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में अपने सदारती उम्मीदवारों का फैसला करते हैं, और 2 सदारती उम्मीदवार इस वक्त आमने सामने हैं जिनमें कि कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप हैं। और बुनियादी तौर पर मुकाबला है इन दोनों के दरमियान। अगस्त में जो बाइडन पहले सदारती उम्मीदवार थे, ताहम उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंतखाब किया, जिसके बाद कैमला हैरिस को मुतफ़क़ा उम्मीदवार बनाया गया क्योंकि उनके मुकाबले में कोई भी अमरीकी जो सेनेटर या अमरीकी कांग्रेसमैन इस ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं था। बिला मुकाबला वो उम्मीदवार मुंतखब हुई और इस वक्त इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। बुनियादी तौर पर तकरीबन 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिनमें से कि 270 वोट्स की ज़रूरत है अमरीका का सदर बनने के लिए। और जो भी आज के दिन फतहयाब होगा जनवरी 2025 में उसकी बाकायदा तौर पर हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ जाएगी अमेरिका में। पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को देखा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से काफ़ी हमायत है, लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान में कैमला हैरिस के हवाले से हमायत थोड़ी कम है। उसकी वजह उनका भारतीय बैकग्राउंड है। उनकी मदर जो है, उनकी वालदा, चूँकि उनका ताल्लुक भारत से था, लिहाजा पाकिस्तान में एक एलिमेंट ऑफ फियर है थोड़ा सा पाकिस्तानी सियासतदानों में कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आती है तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप चूँकि उन्होंने मुख्तलिफ जंगों को ख़त्म किया, अमरीकी फ़ौजों को वापस बुलाने का ऐलान किया अपनी पहली मुद्दत इक़्तिदार में, लिहाजा पाकिस्तान में काफ़ी हमदर्दी उनके हवाले से है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो अमरीका का जो आलमी सतह पे असर रसूख है अस्करी हवाले से उसमें कमी आ सकती है, अमरीकी फ़ौजों को वापस बुलाया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें अमरीकी इंतखाबात की मुहिम की तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप निस्बतन थोड़ा पीछे हैं कैमला हैरिस से। उसकी बुनियादी वजह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तारकीन वतन के हवाले से सख्त पॉलिसी है। इसके अलावा उन्होंने जो मुख्तलिफ कौमियतें हैं अमेरिका में मौजूद, उसमें लातीनी है, लैटिनोज है, स्पेनिश हैं, उसमें स्याफाम अमरीकी हैं, उसके अलावा अरब अमेरिकन हैं, उनके हवाले से बाज़ मौके पे ऐसे उन्होंने बयानात दिए जिनकी वजह से वहाँ पे काफ़ी रिजेंटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। इसके अलावा कैमला हैरिस को हमायत हासिल है, ख़वातीन की बड़ी तादाद में अमरीकी ख़वातीन कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रही हैं, मर्दों की भी एक बड़ी तादाद कैमला हैरिस के साथ है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन ज़ाहिर है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बात मज़ीद करता रहूँगा। हमें सिंध तज्ज़ियेकार जनाब मुशर्रफ ज़हूर साहब ने ज्वाइन किया, मैं चाहूँगा कि उन्हें शामिल गुफ्तगू करें। मुशर्रफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वैसे तो दोनों रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ होना एक फितरी अमर है, लेकिन आपके ख्याल में जो अभी तक आपने कैंपेन देखी है, एक नॉन सीरियसनेस नज़र आती है हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके खिताबात हैं उनके अंदर, और सीरियसनेस है किसी हद तक कैमला हैरिस के खिताबात में, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में। आपके ख्याल में
زیادہ شرف قبولیت ووٹرز جو ہے امریکہ کے ابھی تک وہ کس کو دے رہے ہیں, ٹرمپ کو یا کملا ہیرس کو؟ دیکھیں بہت سخت مقابلہ ہے, یہ پہلا الیکشن ہے امریکی تاریخ کا جب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سب بہت سخت قسم کا مقابلہ ہے دونوں امیدواروں میں, کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں. لیکن آپ نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کی, تو جب ہم پاکستان امریکہ کے تعلقات کو اس نظر سے ہم اس پورے الیکشن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان کی بنیاد کیا ہے, وہ کن عوامل پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زیادہ تر سیکیورٹی, سلامتی سے ریلیٹڈ جو یا ڈیفینس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان پہ زیادہ تر رہی. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں افغانستان میں اس کی مثال ہے کہ افغانستان میں